The inaugural of our today marks a significant step forward in our commitment to ensuring a safer, smarter, and more cyber-resilient society. Ladies and gentlemen, today's inauguration is a collective fight against cybercrime, financial fraud. It's my privilege to have you all here, and at the outset, I welcome Honorable Chief Minister Sir, who has painstakingly taken time to come amongst us and to encourage you, the warriors. I say Yodha, and on that, I ask you, how is the Josh? So I'll again ask you, how is the Josh? Are you ready to be in the field? Yes, sir. Will you spread the awareness? Yes, sir. Will you increase your knowledge in the cyber frauds? Yes, sir. You will be ahead of the cyber fraudsters? Yes, sir. If you say yes, I believe it. And I ensure the Honorable CM sir that the way we are leveraging the technology with the help of the young students and the senior yodhas who will work day and night if required. But normally you will not be required to work day and night. Whenever and wherever you are, just aware the people. Ask them to stay away from all kind of greeds. Nothing comes free. Nothing comes automatically. It is the fraudsters who lure you so that they siphon off your hard-earned money. Well, with these technologies, our police and our cyber warriors will be strengthened, and I hope that one day we will see that there are no cyber fraudsters who are afflicting the bleeding of the Goans or the tourists who are coming to this place. In the last 7 days, our youngsters team had busted 7 such gangs which were fraudulently siphoning off the hard-earned money of the tourists, of the Goans, and from the people across all walks of life. I once again welcome DG sir, DIG sir, SP Crime, Inspector Deepak, and the traffic police who are waiting outside to ease the safety of the people and to ease the followers of the traffic people, so that they are not harassed on every hook and corner. Once they check that someone is carrying genuine document, through this traffic app they will show to the traffic policeman and he will not ask any other document if he has been already frisked. Once again, I welcome you and looking forward to spread awareness. Thank you. Thank you, sir. Now I request our SP Rahul Gupta sir appears to brief you all about our Cyber Yodha initiative, the mind behind this particular concept. Please. Actually, we are Deepak, respected CM sir, respected DGP sir, respected IG sir, DIG sir, and all the dignitaries present in this hall. Now the cyber yodhas, media friends, police personnel who have come here. It is my indeed the privilege to have Honorable CM sir to launch this initiative. We have been working on this initiative for last 2 months. हमने 2 महीने से different colleges को approach किया, communities को approach किया, volunteer groups को approach किया, NGOs को approach किया कि हमको कुछ volunteers चाहिए जो कि cyber की field में interested हो और जो पुलिस के साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के बीच जाकर अवेयरनेस का प्रोग्राम कराने में सक्षम हो और जिनमें इतना कॉन्फिडेंस हो और जिनमें इतना विल पावर हो कि वो इस काम को करने के लिए तैयार है। तो सर हमको काफी सारे कॉलेजेस से अच्छा रिस्पांस मिला सर, केएमएस से लेके सीओलिम से लेके सारे गोवा कैंप को अलग अलग कॉलेज से 12 कॉलेज से अच्छा रिस्पांस मिला सर।
उसके बाद बहुत सारे जो NGOs हैं सर, उन्होंने भी हमको अप्रोच किया वॉलंटियरली। तो सब कुछ मिला के सर हमने 120 वॉलंटियर्स इस तरीके से तैयार किए सर। 120 वॉलंटियर्स हमने 4 बार ट्रेनिंग सेशन दिया है सर, एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी दिया, डाउट क्लियरिंग सेशन भी दिया, और इनका हमने टेस्ट भी लिया है सर बीच बीच में कि वो whether they are able to deliver the content or not। तो अल्टीमेटली सर इट्स अबाउट कि वो किस तरीके से पब्लिक के साथ थॉट स्ट्राइक करते हैं ताकि पब्लिक के बीच में उनका मैसेज जाए। और सर जैसा कि सर आपने आपको उस मीटिंग में बताया सर कि साइबर फ्रॉड इज अ ग्रोइंग मेनेस, और जिसको टैकल करने के लिए सिर्फ पुलिस अकेले उसको कंप्लीटली उसको टैकल नहीं कर सकती सर, हमको कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजों से साइबर फ्रॉड्स होते हैं। जैसे सर किसी के पास मैसेज आया कि आप अगर 50,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 2 लाख रुपए रिटर्न मिलेगा। अब ये मैसेज पढ़ते से ही लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये फ्रॉड है। तो कभी कभी लेकिन लोगों को इग्नोरेंस में, ग्रीड में, जैसा आईजी सर ने भी बोला, ये पता नहीं होता है। तो वही हमारे साइबर योद्धास का काम है कि वो जाके पब्लिक को बताएं कि इस तरीके का आपको अगर कोई मैसेज आता है, किसी तरीके से आपको ल्योर करने की कोशिश करता है, तो आप सतर्क हो जाए। और जब भी कोई फ्रॉड हो तो 1930 पर कॉल करें, cybercrime.gov.in पर जाके आप उसमें कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो सर अभी 120 वॉलंटियर हमने ट्रेन किए सर, इनको हम पुलिस स्टेशन वाइज डिवाइड करेंगे। सारे पुलिस स्टेशन के पीआईस को भी हमने बुलाया था सर, कोई बाहर है सर बहुत सारे पीआईस, तो उनको हम अलॉट कर देंगे कि आपके पुलिस स्टेशन के लिए ये साइबर योद्धा रिस्पॉन्सिबल है। उनके साथ ही अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना के पुलिस स्टेशन की जो साइबर टीम्स है उसके साथ उनका कोऑर्डिनेशन करा के, और बीट स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन करा के, जहां भी पब्लिक गैदरिंग है वहां पर लेके जाएं इनको। और साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम साइबर सुरक्षित गोवा इनिशिएटिव के अंदर हम लोग करें सर। हमने सर हमारे प्रेसिडेंट डीजी सर के लीडरशिप में बहुत सारे साइबर को स्ट्रेंथन करने के लिए विजन लिए हैं, और उसमें ये साइबर योद्धा भी वन ऑफ दैट इनिशिएटिव है सर, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए हमको लोकल पुलिस स्टेशन के हेल्प की जरूरत रहेगी। और सर इसके लिए मैं आईडीसी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, जिन्होंने आईडीसी ने बेसिकली सर स्पॉन्सर किया इस प्रोग्राम को, और उन्होंने सर टी शर्ट्स, कैप्स जो उनको आर्टिकल्स दिए गए उसको स्पॉन्सर आईडीसी ने किया है। और आगे सर इनमें आगे इंसेंटिव का स्ट्रक्चर सर हमारा डीजी सर से हमारा प्लानिंग है कि इनको जैसे जैसे ये पब्लिक के बीच में जाके 500 लोग 600 लोग टारगेटेड तरीके से अवेयरनेस देंगे, वैसे वैसे इनको हम सर्टिफिकेट्स दिलवाएंगे और कैश रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। सो दैट इज द प्लानिंग, एंड आई urge all the cyber yoddhas to remain this energetic and this committed for the cause of cyber safety. Thank you. To understand more about this particular initiative, there is a small AV we have going to show you all. Please have it. In this digital world, cyber threats are everywhere. Scams, frauds, online crimes are increasing daily. But what if you could be the protector of your community? Introducing Cyber Yoddha, a movement where young minds become cyber warriors. Students will be trained in cyber awareness and will take this mission forward, educating the people in their neighborhood along with local police. Cybercrime is a growing challenge, and awareness is the only weapon what we have. And as a cyber yoddha, we are going to identify this threat and make the public aware how to remain safe. एक बार बेसिकली हो गया आपको इतना लगता है, लेकिन अब ये साइबर योद्धा से क्यों आपको मालूम पड़ा है कि यूपीआई आईडी और डेट पर टाइम भी देखा पड़ता है। Because at a time, when we were work for around 1930 around 40. Cyber Yoddha is not just a program; it's a revolution. Join us, be a cyber yoddha, and help build a cyber-safe society. We pledge to be cyber yoddhas. We will protect, educate, and empower our community against cybercrime. The same sir के विजन और डीजीपी सर के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग वो साइबर सेल ने साइबर प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के अंदर ट्रेंड साइबर वॉलंटियर्स, लोकल पुलिस स्टेशन के स्टाफ और साइबर टीम्स के साथ मिलकर कम्युनिटी वाइड अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे। यदि आप भी साइबर योद्धा बनना चाहते हैं तो अपने लोकल पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन पर जाकर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद। Now moving to our next initiative, there is the Quick Pass app. I request SP Traffic Sri Pramod Shivekar Sirji to brief us about this particular app. Thank you. Chief guest of today's function, Honorable Chief Minister of Goa, respected DGP sir, respected IG sir, respected AG sir, respected SP Crime, and officers and invitees, friends present here. First of all, I welcome you to the launching of this Quick Pass mobile app.
Honorable Chief Minister of Goa. I would like to thank Honorable Chief Minister for taking out some time out of his busy schedule, sir, and honoring us with his gracious presence today. This Quick Pass mobile application has been developed by our own Goa students of Padre Kosazam Engineering College, Verna, to streamline traffic compliance check. This app generates a QR code that serves a proof of traffic compliance. Motorists traveling in their own vehicle or using a rental can display this QR code to the police officer at various checkpoints, eliminating the need to repeatedly present physical documents. Sir, we have imparted training to our traffic officers, sir, to log in the application and process outline how can officer issue a traffic compliance pass and also had a trial run of the same, sir. So far, sir, till date, 2,398 Quick Pass have been issued to the motorists, sir, during trials in the field. This Quick Pass mobile application is one of kind app launched exclusively in Goa. So, Magadisna, India, very all Quick Pass, sir. I would like to thank Palas and his team from Padre Kosazam Engineering College, Verna, for dedicating their time to develop Quick Pass, a professional mobile application for Goa Police. This initiative also provided the students with a platform to show cause and open up career options. Sir. I also thank Director of Padre Kosazam College, who is present among us, HOD of Computer Department of Padre Kosazam College. I would like to express a gratitude to Samruddh Bharat Technology Private Limited for hosting the Quick Pass mobile application on their server. I once again thank you, sir, Honorable Chief Minister, DGP sir, AIG sir, IG sir, and all present for gracing this occasion. Sir, thank you. नमूद करून सुद्धा की हे जे ऍप आसा आमच्या गोयच्या भुरग्यांनी डेव्हलप केला. आमच्या गोयचे कॉलेज ही फादरी कॉसेजांव कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग जो खरोच आमचो प्राउड मुवमेंट आसा. कारण हे जे ऍप जे आसा इंडियन खंयच ना, हे ऍप इंडियन बाकीच्या प्राउड मुवमेंट फॉर अस. We have a small EV to show how this app works. Please review this. मैं उन्होंने अभी उधर रोका, अभी तो रोक रहे, अभी आगे जाके रुकेंगे मेरे को उधर. ऐसा सर, मेरे को कॉलेज के लेट हो रहा है सर, आप मेरे को जान को लाइसेंस में दिखा है, उधर सब दिखा है सर. मैं जैसा पूरा मैंने दिखा है उनको, पूरा सब मांगा, ये कार्ड, वो कार्ड, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सब मांगा, अभी सब दिखा वापस आपको. QR कोड नहीं QR कौन सा QR? ये बना दिया कि QR कोड दिया नहीं आपको, तो चेक कर QR कोड. नाम क्या है आपका? आलोना. अरे कैसे जुड़ा? के बाद पास है वो पुलिस का हो. हाँ, मेरे पास हेलमेट में पहना था, मैं लाइसेंस दिखा उनको, ऐसा हर जगह आप रोकोगे. पास किया है, उनके पास वो है, बच्चों को छोड़ा है, आपके पास एक है. कौन सा पास? वो पुलिस ने वो पास किया, आपके पास है नहीं.
request our Honorable CM Sir to officially launch this app by answering. Let him stand there. You come in. Thank you, sir. This app is really going to safeguard all the people, especially regarding complaint of harassment, and it will bring a good name for the state of Goa and to the Goa police. Thank you, sir. Now I request our respected DGP sir to say a few words on this occasion. CM sir, IG, DIG, SP Crime, SP Traffic, साइबर विभाग, मीडिया के दोस्तों और बाकी जो हमारे दोस्त जिन्होंने इस ऐप को डेवलप किया है, गोवा पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी काम किया है और आज के लिए जितने इनिशिएटिव हैं ये सब पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करने के ही अलग अलग टूल्स हैं। सबका मकसद वही है और एंड रिजल्ट वही है। सर हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ट्रैक जो ट्रैफिक कंजेशन मॉनिटरिंग सेंटर है नेत्रा, जिसमें हम लोगों ने तमाम सीसीटीवी जो पूरे गोवा स्टेट के हैं उनको मैपिंग करने का काम किया है। जनवरी के महीने में QR कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम सारे थानों में और बाकी जगहों पे किया है। भाषणी ऐप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐप है उसका इस्तेमाल वैसे पुलिस प्रोसिक्यूशंस के साथ करने में किया है, बातचीत करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए जो हमारी लैंग्वेज नहीं जानते। और इसके अलावा साइबर क्राइम के अंदर में जो हमारी यूनिट है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे कदम हम लोगों ने उठाए। ये सितंबर के महीने में एक हैकाथन हम लोगों ने सर आयोजित किया था और उसमें हम लोगों ने टोटल 9 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए थे और सर हमें खुशी है कि उसमें से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर जो सॉल्यूशन डेवलप किया गया था उसको आज आपके कर्मचारियों से यहाँ पे लॉन्च किया गया। यूजुअली हैकाथन ज्यादातर जगहों पे एक एकेडमिक एक्सरसाइज बन गया है और हम लोगों का प्रयास है कि कम से कम 3 सॉल्यूशन जो 9 के बीच में आए थे 9 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के उसको हम पब्लिक सर्विस में यूज कर सके, जिसमें आज पहला हुआ है और बहुत शीघ्र हम एक दूसरे ऐप पे भी काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर उसको भी हम लोग लॉन्च कर पाएंगे। सर आज 1930 का डेडिकेटेड जो साइबर हेल्पलाइन है उसका भी आपने उद्घाटन किया है जिसमें 2 लाइन राउंड द क्लॉक यहाँ पे चलती हैं और उससे पब्लिक जिसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है उसको जो भी मदद हम लोग कर सकते हैं और लीगल एक्शन जो उसके बाद इनिशिएट करना होता है वो तमाम उसके बाद किया जाता है। तब गोवा के अंदर में 2023 के अंदर में हम लोगों को 1788 कंप्लेंट टोटल हासिल हुई थी साइबर क्राइम के फील्ड में और 2024 में ये बढ़ के 2847 हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि साइबर क्राइम का इंसिडेंस बढ़ा है, इसका ये है कि जो लोगों को जैसे अवेयरनेस होती है
वैसे वैसे उसकी रिपोर्टिंग बढ़ती है। कई बार हम लोग जनरली इस तरह से बोलते हैं कि साइबर क्राइम बढ़ गया है, एक्चुअली रिपोर्टिंग बढ़ गई है। और रिपोर्टिंग बढ़ना अच्छी बात है, क्योंकि जब रिपोर्ट होगा तो पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेगी। जब एक्शन लेंगे तो जो साइबर क्रिमिनल है वो ही विल बी डिस्करेज, भाई हमें इस तरह का क्राइम नहीं करना है, ही विल बी अरेस्टेड, ही विल बी पुट टू लीगल कोर्स ऑफ एक्शन। तो रिपोर्टिंग होना अच्छी बात है, रिपोर्टिंग बढ़ना अच्छी बात है। अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स टू रिडक्शन ऑफ साइबर क्राइम। तो पिछले साल हमारे यहाँ करीब 101 करोड़ का फ्रॉड हुआ है सर, तो which basically means 8 to 9 crore per month. Our target is that by making people aware, गोवा के सिटीजन्स को इतना हम बता दें ताकि ये घट के लगभग 30 से 40% क्या हम लोग इस साल घटा सकते हैं। दैट इज आवर क्वांटिटेटिव काइंड ऑफ टारगेट्स, और हमें इसमें सफलता मिल रही है। धीरे धीरे ये घटता जा रहा है, जैसे जैसे लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, दे आर नॉट फॉलिंग प्रे टू साइबर फ्रॉड्स। इसके अलावा सर जो AIML लैब है, इसका भी आज सर आपने उद्घाटन किया है, और इसके अंदर में कई प्रोजेक्ट्स AIML लैब में हम लोग टेकअप करने वाले हैं। और ग्रेजुअली हमें उम्मीद है कि 2025 के एंड तक करीब 5 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने इसमें विजुअलाइज किए हैं, और वो सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग ग्राउंड पे लाने में कामयाब हो जाएंगे। मैं सर ब्लॉक पुलिस की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमेशा ही हम लोगों के इनिशिएटिव को हौसला देने के लिए कंटिन्यूसली गाइड भी करते हैं, और जब भी कोई नया इनिशिएटिव हम लोग लॉन्च करते हैं आप समय निकाल कर आते हैं, जिससे हम लोगों का जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करने का एक मकसद है उसको और बल मिलता है। धन्यवाद सर। Now I probably request our visionary leader, Honorable CM sir, to say a few guiding words. नमस्कार. गोवा पोलीस डिपार्टमेंटच्या वतीन स्मार्ट पोलिसिंग इनिशिएटिव्स हाच्या लॉन्चिंगच्या कार्यक्रमात आपल्याकडे आलोक कुमार IPS डायरेक्टर जनरल ऑफ गोवा पोलीस, रेस्ट ऑल IGP, DGP, SP, बाकीचे सगळे सायबर पोलीस डिपार्टमेंटचे सगळे स्टाफ, स्पेशली सायबर योद्धा, पांढरे प्रोफेसर कॉलेजचे प्रिन्सिपल आणि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्टुडंट्स आणि माझ्या पत्रकार भावांनो, खरें म्हटल्यार आयचो इनोव्हेटिव्ह प्रोग्राम आमी हांगासर ल्हानशा हातूंत जरी आयोजन केलो जाल्यार आमी जे आमचे सायबर रिलेटेड ऑल थिंग्स ज्या रायबंदराच्या ह्या पुलीस स्टेशना वयल्यान चलता, क्रायम पुलीस स्टेशना वयल्यान थंयसर हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केला. आनी 4 इनिशिएटिव्ह आमी घेतले. एक डेडिकेटेड सायबर हेल्पलायन सेंटर 1930, second AIML lab, third cyber uddar initiative, and fourth one quick pass mobile app. The 4 initiatives जो आसा, but it is a significant milestone in the Goa's journey towards the modern technology driven policing for the safe, secure and smart governance. Cybercrime for one of the fastest growing threats मतलब काय हरकत जावचे ना. आणि म्हाका दिसता ग्लोबल टुरिझम आणि इन्व्हेस्टमेंट डेस्टिनेशन गोंय सारकेल्या ठिकाणी सेफ डिजिटल अँड फिजिकल एन्व्हायरमेंट क्रिएट जावप ही काळाची गरज आसा, आणि ताकाच लागून आमी अशा पद्धतीचे वेगवेगळे इनिशिएटिव्ह घेत आसा. इनोव्हेशन इन गव्हर्नन्स अँड स्मार्ट पोलिसिंग हे सातत्यान फाटल्या 5 वर्सां म्हणजे टेन्युअरांत आमी कंटिन्युअसली करीत आसा, आणि ताकाच लागून स्मार्ट पोलिसिंग स्ट्रिक्ट modern adaptive responsive technology driven and new age crimes such as the cyber fraud, identity theft and the digital harassment हाजेर कंट्रोल करपा खातीर सातत्यान पुलीस हे वेगवेगळे इनिशिएटिव्ह घेत आसा. तशेंच आयचे 4 इनिशिएटिव्ह आसा. आज आमी पळयताय वी आर फर्मली बिलीव्ह इन लिव्हरेजिंग द टेक्नॉलॉजी फॉर इफेक्टिव्ह गव्हर्नन्स अँड लॉ एन्फोर्समेंट. आणि हे सगळें करता आसतना हांवें जशें म्हटलां की पयलो इनिशिएटिव्ह जो आसा वो it is a dedicated cyber helpline 1930. It is for the individual who are losing the money to online fraud or the business facing the cyber attack. आता DGP सांगल्याच्या प्रमाणे ऑन एन एव्हरेज म्हयन्याक 10 कोटी रुपया ह्या फ्रॉडाक वता गोंयांतले. इमॅजिन करा, तांच्यांनी सांगलें की आमच्याकडे रिपोर्ट जाल्ल्या प्रमाणे अप्रॉक्सिमेटली एन्युअली 120 कोटी. आता 10 कोटी कोणाचे वयता? आमच्या गोंयकारांचे वयता. आता ते जर आमी अवॉइड करतले जाल्यार आमी कितें करचें पडटलें? आमी सायबर अटॅक जातात किंवा सायबर मनी फ्रॉड जाता हाज्या बद्दल अवेअरनेस करपाक जाय. मागीर सायबर युद्धाचेर येता.
वो अवेअरनेस जावपा खातीर सायबर युद्धात आमी तयार केल्ले आसा. आता ताका लागून क्विक तांच्यांनी कमीच कमी आपल्याक जर अननोन फोन कॉल आयलो मुद्दामूच सांगता आसत जाल्यार पयशे भर तुज्या चल्याक धरल्या तुज्या चलवेक अरेस्ट केल्या ईडी सांगता आनी कोण सांगता आसत जाल्यार फोना वयली खंयचीच गजाल खरी न धरता फोनार चुकून सुद्दां आपलो नंबर जर अजूनही गोंयकार आमी इतके परत परत उलयता तरी आपलो आयिल्लो पिन नंबर जे ऑलमोस्ट दिता आपलो जे कार्ड नंबर वो तांकां पास ऑन करतात आनी आपले सगळ्यातले सगळे पयशे अकाउंट कंप्लिटली खाली करतात. दुसरी गजाल तूं 20,000 रुपया भर तुका 20 लाख रुपया मेळटले ह्या फ्रॉडाक तर खूब जाण बळी पडलेले आसा. म्हणजे इनिशियली ते पयशे भरीत वता आनी मागीर जेन्ना कळटा आपूण फटावलो म्हणून तेन्ना पुलिशे कडेन येता. ताकी एट द फर्स्ट अटेम्प्ट आपल्या घरा कडल्यानूच जर 1930 1930 कॉल केलो जाल्यार आमी डायरेक्टली विदिन 3 hours ताका ब्लॉक करपाक शकतले. म्हणून चुकून सुद्दां पयल्यात पयली नंबर जरी आयलो आसत जाल्यार तो 1930 चेर ह्या फोन कॉला वयल्यान आपल्याक फोन आयला आनी हाजे कडल्यान पयशांची डिमांड केल्या किंवा डॉक्युमेंटाची डिमांड केल्या. कितें सविस्तर गोंयकारांक आव्हान करता की तुमी ह्या इंडियन सायबर क्रायम सेलाचो आमी नंबर ब्लॉक सांगचो. आतापर्यंत सायबर क्रायम सेलान जवळपास 155 वेबसाईट 28 सोशल मीडिया अकाउंट 466 मोबाईल नंबर आणि 138 IMEI नंबर्स हे टार्गेटिंग फ्रॉडुलंट ऍक्टिव्हिटीज सज आयडेंटिफाईड केल्या थेफ्ट आणि ताका बॅन केल्ले आसा. ताच्या खातीर आमकां गव्हर्नमेंट नोटिफिकेशन जे काडपाक जाय आशिल्ले ते गव्हर्नमेंट नोटिफिकेशन अंडर द सेक्शन 79(3)(a) म्हणजे IT एक्टाच्या नुसार आम्ही ते नोटिफिकेशन सुद्धा ऑलरेडी काढला जेणेकरून आम्ही त्याचे डायरेक्टली एक्शन्स अशा हार्मफुल डिजिटल कंटेंट एन्श्युअरिंग आणि सेफर सायबर स्पेस फॉर अवर सिटीजन हाच्या खातीर हे नोटिफिकेशन्स काढलेले आसा. म्हणून गोंयांत जाता तितको चडांत चड हाचो अवेअरनेस क्रिएट करपाची गरज आसा. ते आमच्या कडल्यान सरकार म्हणून आमी करता आमचे सायबर युद्धाय करतले. पण म्हज्या प्रेस भावांक हांव आव्हान करता कारण तुमी केल्ली अवेअरनेस ही चड लोकां मदीं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया प्रेस मिडिया म्हणून तुम्ही अशा पद्धतीचो अवेअरनेस चड करतो. केसीस रिपोर्ट चड जाले म्हणून काय हरकत ना. जशें DGP सांगल्यार सायबर फ्रॉड चड जावंक ना अवेअरनेस चड जाल्ल्या कारणान रिपोर्टिंग चड जालें. जेटी सर्टन लेवलाचेर रिपोर्टिंग वाडटलें देन इट वील बी द ड्रॉप. कारण ते एकदा अवेअरनेस जालो मागीर रिपोर्टिंग मागीर ड्रॉप जातलें मागीर तूं फोटोचें ना ऑटोमॅटिकली सांगतलें तुका कितें तें शिकयता हांव म्हणून तो फोनार परते सांगतलें आनी तें सांगपाची गरज आसा. म्हणजे ती हिम्मत दिवपाचें काम तुका कितें तें हांव शिकयता हे हिम्मत दिवपाचें काम आमचे पुलिसींग करता किंवा सायबर युद्धा करतले आनी तें करपाची नेमकी गरज आसा. आता AIML लॅब म्हाका दिसता दिस इज द सेकंड लॅब इन द कंट्री. फर्स्ट लॅब पंजाब गव्हर्मेंटान ओपन केली. AIML lab, artificial intelligence and machine learning driven lab, and which is analyze the cyber threats, automated policing processing and improving crime prevention techniques. वेगवेगळे टेक्निक्स आज जे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून करपाक लागलेले आसा इमॅजिनूय करूंक शकना. सादो विचार जरी केलो आसत जाल्यार तो विचार सुद्धा करपाक शकना. त्या पद्धतीचे जे फ्रॉड्स डे बाय डे वाडपाक लागलेले आसा आनी ताजेर कंट्रोल घेवपा खातीर आमी AIML लॅब जी आसा पळय ही एस्टाब्लिश केल्या आनी तेतूंतल्यान म्हाका दिसता सायबर क्रायम डिटेक्शन डिजिटल फ्रॉड हे हाज्या पासून आमी इजिली अशा पद्धतीचे हे इमर्जिंग सायबर थ्रेट्स जे आसा पळय गोंयाक सेफ आनी सेक्युअर दवरपाक शकतले. त्या खातीर Goa is setting an example for the other states to adopting the cutting edge technology for the public safety. In future, it will be for the especially for the public safety. Third one, which is the cyber युद्धा. सगळ्यात पहिली म्हणजे समोरची म्हणजे सगळी फ्रेंड्स बसल्या चले आनी चलयो त्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. आपल्याच खातीर पहिली ताळयो वाजून घ्या. Congratulations to all of you. कोणी तांकां खरें म्हणजे तुमकां सर्टिफिकेट मेळटली किंवा तुमकां इन्सेंटिव्ह मेळटले किंवा तुमकां प्रायजीस मेळटले कोणीच रिग्रेट करूंक ना. पण तांचे तांकां स्वताहूच दिसलें की हय आमी सायबर युद्धांत जावचें. आयच्या ह्या युगांत सायबर युद्धां
म्हणजे तशें म्हणटा की हे सुद्दां इम्पॉर्टंट आसा म्हणून आमचा एसपी क्रायम आणि इनिशिएटिव्ह घेतली आणि तांकां अपील केले की हय तुम्ही सायबर युद्धा म्हणून फुडें येयात आणि त्याच्यानुसार तांच्यांनी ही आपुणूय दे आर रेडी टू शेअर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अवेअरनेस ऑफ द सायबर क्रायम इन द सोसायटी. ते हांव मनापासून तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता आणि खरोखरूच आमी ताका म्हणटा की सायबर सुरक्षीत गोंय करपा खातीर सगळ्यात व्हडलो हातभार तुमचो आसतलो. तुम्ही सोसायटी ग्रासरूट लेवला पर्यंत हे सायबर फ्रॉड कशा पद्धतीचो जाता हे समजून सांगपाक शकतले. पण त्याच बरोबर नो डाऊट म्हणजे तांच्यांनी म्हटला की तुम्ही 500 केसीस रिपोर्टेड केल्या उपरांत तुमकां सर्टिफिकेट तर दितले आमी एज वी आर ऑलरेडी जॉईन फॉर द पुलीस स्टेशन. पण तुम्ही त्यांच्यानी 500 आय डोंट नो आय एम नॉट गोइंग इन डिटेल बट सर्टन तांच्यांनी आंकडो ठरयला की त्यो केसीस जेन्ना तुम्ही रिपोर्ट करतले पुलीस स्टेशनाक आपण अवेअरनेस केलो सांगले सेमिनार घेतले definitely we are giving a good incentive for you people. Very good incentive also. So what incentive? आपण फिगर डिक्लेअर करीना कारण म्हाका तुझे फिगर डिक्लेअर करच्या पयलीं म्हाका पुलिशे कडेन उलोवचें पडटलें आनी लॉंग रन म्हणजे हे म्हणल्यार ताका बरो इन्सेंटिव्ह जे आसा पळय विदीन नवी म्हणजे 6 म्हयन्याच्या भितर बरो इन्सेंटिव्ह जो आसा पळय सगळ्या जाणांक मेळटलो कारण ऑटोमॅटिकली दे आर वर्किंग फॉर द कम्युनिटी. They are ready to work for the community and they will work for the community. They continuously लोकांमध्ये awareness करप समजून सांगप त्यांची एक रिपोर्टिंग सिस्टम दवरतले त्या रिपोर्टिंग सिस्टमाच्या उपरांत तांचे नंबर केसीस डिटेक्ट केल्यो काय ताका इन्सेंटिव्ह आमच्या होम डिपार्टमेंटा कडल्यान खास करून डीजीपी कडल्यान आमी दितले जाल्यार 6 म्हयन्यांनी रिव्ह्यू घेतले आनी तांकां इन्सेंटिव्ह दिवपाचें काम हे आमी करतले. चवथी इनिशिएटिव्ह विच इज अ क्विक पास मोबायल ॲप ही खरोखरच बरी इनिशिएटिव्ह. आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग फॉर द पाद्री कॉन्स्टिट्युशन कॉलेज फॉर डेव्हलपिंग दिस क्विक पास मोबाईल ॲप. तांच्याय खातीर नेटान ताळयो मारत आपूण ताळयो स्टार्टअप गोवन ओन स्टार्टअप आमच्या भुरग्यांनी स्वताचो तयार केला. वी शूड फील प्राऊड जे गोवन ओन स्टार्टअपात क्विक पास मोबाईल ॲप तो आज सुरुवात केला. जेणेकरून तुम्ही पळयला की आमकां परत परत कंप्लेंट येता आपल्याक परत आडयता म्हणून बरेचशे फावटी मागीर ती टुरिस्टाची आसूनी किंवा ती लोकल लोकांची आसूनी ह्या बाबतीत दीस इज ऑलरेडी ट्रायड म्हणजे 4200 लोकांची ताची ट्रायल घेतली आमी पयली की कशा पद्धतीन वर्क जातलो आणि ती 4200 म्हणजे तांच्यांनी म्हटलं इट इज 12 आवर्स. नाव हांव ताका आतांच सांगता इट शूड बी 24 आवर्स. आज तो 5-6 जर आयज दनपारां जनरेट जालो जाल्यार फाल्यां दनपार कडेन तो 5 दाखयलो तो व्हॅलीड आसतलो. इट वील बी द इनिशियली 24 आवर्स. ओके एकदा 5 दाखयलो तेजे सगळे अपलोड केले जाल्यार परत कोण लायसन विचारचो ना आरसी डॉक्युमेंट विचारचो ना काय ना अनलेस एंड अंटील आमचे तर म्हणणे की रुटीन टुरिस्ट एका परत हात दाखवून हाडूंकूच जायना ताज्या खातीर. पण अनलेस एंड अंटील ते वायोलेशन्स खूप मोठ्या प्रमाणात करपाक लागले. गोंयांत आसा ते जशे गोंयकारांनी सिस्टीम ड्रायव्हिंग करता टुरिस्टांनी बी त्याच पद्धतीचे सिस्टीम ड्रायव्हिंग हांगासर करचें. तेंच्यांनी एकदा तांकां डॉक्युमेंट दाखयले पास मेळ्ळो मागीर परत डॉक्युमेंट काडून दाखोवपाची गरज ना. त्यांच्या पुलिसांनी हाडयला काय फक्त पास दाखयले काय गेलो एकही सिस्टम म्हणजे पुलीस फॉलो करतले. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ स्टेट जे देशातल्या पयली स्टेट आसा की ज्यांच्यानी हो पास आमी डेव्हलप केला. पास सिस्टम ना इन लॉंग रन बाकीच्यो स्टेटी ज्यो आसा पळय हो अशा पद्धतीचो क्विक पास सिस्टम ही फॉलो करतले. डेफिनेटली इट विल बी द encouraging the innovation and law enforcement by the Goa Police Department. The government of Goa is fully committed for supporting the innovation in policing, okay, for ensuring that law enforcement agencies have access to the latest technology to combat the modern challenges. हे दाखोवपाची गरज आसा. म्हणून आयच्या सुवातेर हांव सायबर युद्धाचे बी कॉंग्रॅच्युलेट करता. पाद्री कॉन्स्टिट्युशन कॉलेजीचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स करता. म्हज्या सायबर सेल सायबर पुलीस हांच्या सगळ्यांचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स करता. आणि डेफिनेटली म्हणजे म्हाका दिसता की अशा पद्धतीचे हे सगळे इनिशिएटिव्ह इट विल बी द बेंचमार्क फॉर द स्टेट इन लॉंग रन. आमी हे एक नवीन आमी जशें म्हणटा की गोंय हे स्वयंपूर्ण जावपाक जाय हे सगळे सांगता आसतना सायबरच्या बाबतीत सुद्धा आमच्याच लोकांनी तयार केल्ले ॲप जे जशे 2-3 ॲप आमच्या ओन लोकांनी स्टार्टअपान तयार केल्या पळय ते लावपाची गरज आसा.
and day by day नवीन टेक्नॉलॉजी आमची भुरगीं डेव्हलप करपाक लागलेली आसा हें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता आणि डेफिनेटली दिस इज अ डिजिटल सेक्युरिटी इनोव्हेशन एंड सिनियर गव्हर्नन्स आमच्या गोवा पुलिसेक येता हें पळोवन खास खोस भोगता हांव खरोखर परत एकदा सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता तुमचो सगळ्यांचो तेंको हो गोवा पुलिसेक सदोदीत आसतलो सगळ्या परत एकदा गोंयकारांनी ही अशी सायबर फ्रॉड जाता ताज्या बद्दल न चुकता आपल्याक जर चुकून अनवळखी नंबर आयलो जाल्यार 1930 1930 ह्या नंबराचेर फोन करपाक विसरू नका कोणूच कोणाक फसले वचूं नका फरशे न्ही म्हणून तर आमी 1930 हो नंबर डायल करात केन्नाय खंयच्याय बाबतींत कसल्याय फ्रॉडाक 24/7 सायबर पुलिसींग तुमकां सर्वीस दितली 1930 हो नंबर दाबात इतकें सांगता देव बरें Thank you, sir, for your expression. Now we'll move on to the student certificate. I request our respected sir. Will have outside बॅच पैकी सगळ्या उमेदवार जे फक्त एक सर्टिफिकेट यांना दिलं पात्री पासून त्यांना उभे राखून कारण सगळ्यात आलं उमेदवार एकच नंतर वेळ एखाद लाईनअप करपाला एक स्टाफचे उमेदवार 4 वाटत सगळ्या उमेदवार As an appreciation for the efforts made by our students for developing a quick path Shan Ali. Donald Knight. Travis Hamilton. And Director of Samruddha Bharat Technology, Mr. Patil. दोन गुरुजी दिले अब आप इस आप बैठो आप खड़ा रहो